कि जब मुझे ऐसा बहुत ही इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा, मैं तुम्हें कॉल करूँ तो तुम छोड़ के नहीं आए, तुम फ्लाइट टिकट लेके, मैं तो तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ दूँ. समझ आता है यार, दिस नॉट बीइंग एबल टू मीट या परमिशन ना मिलना. और तुम सोचो ये कितनी कंटेंट रिच चीज़ है. इसके अंदर यू नो यू कैन हैव सो मच कॉमेडी एंड यू कैन हैव सो मच फन कंटेंट बेस्ड ऑन दिस के आई मीन आई एम श्योर अ लॉट ऑफ गर्ल्स हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज एज टू हाउ दे हैव ओवरकम दीज बैरियर्स, या कैसे उन्होंने पेरेंट्स के साथ नेगोशिएट किया, या क्या रिस्क लेके क्या झूठ बोला. आई एम श्योर इट इज एवरीबडी हैज दीज अमेजिंग स्टोरीज. Welcome to another episode of the 3 a.m. call, a podcast where two friends from opposite ends of the Indo-Pak border get together to discuss with you their stories, their rants, their opinions, their vulnerabilities, etc. 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 I am Rafia Jafar and with me is Ashima Jain, and we are your hosts for this podcast. Should I do that again, Ashima, where I say what's up and you freeze? No. I really wanted to do that. No. Anyways, so today we are going to talk about something which is like the central theme of this podcast also. And this is one of the reasons I wanted to start this podcast also. We want to talk about female friendships and the way they are portrayed in media and the way society thinks about them and the myths around them. And generally one of the reasons when we started this podcast in my mind was कि भाई the way I think people see female friendships या जो myths बनी हुई हैं, like I wanted कि one of the things that podcast would do was like this is our friendship basically. Like a lot of things that we talk about here हम phone पे करते थे बातें. That is why we started this podcast. So I thought that would be an accurate portrayal also of what female friendships are like. According to Bollywood movies though, I mean not exactly Bollywood movies, Bollywood को पे इंजाम नहीं लगाऊंगी. A lot of movies सबको लगता है कि women only talk about boys और they are crying over their heartbreak. और भले कितनी भी बड़ी औरतें हो या फिर बड़ी छोटी बच्चियाँ, that they are always talking about boys. और आई डोंट नो बिकॉज आजकल अपन काफ़ी लिबरल हो गए हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स और गालियाँ दे रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज़ देयर आइडिया ऑफ फीमेल फ्रेंडशिप्स एंड दिस आइडिया ऑफ दीज वुमेन कमिंग टुगेदर एंड fighting battle against women empowerment, and that is their feminism apparently, that they can dress in a certain way, that they can drink alcohol and then they can abuse and then they can talk about sex, masturbation, and that is what female friendship is about. I mean that's the kind of representation we have in Bollywood, in media. I'm not saying that is the only representation. We have good movies also. We have good. जैसे आजकल OTT platforms से बहुत अच्छे series हैं कैसे like for that. But लेकिन a majority of the films portray this kind of screwed up idea of female friendship, I believe, which is I think toxic. Society में भी ये understanding होती है. Like हमेशा I mean तुमने लड़कों में जोक्स भी देखे हैं या द वे जो भी मतलब कभी मीम्स बनती हैं या समथिंग लाइक दैट, ऑल दे कैन सी इज कि ओ लड़के जो है हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं एंड लड़कियां तो इतने नखरे हैं और ये तो ऑल दे डू इज फाइट एंड देयर सो कैटी एंड देयर सो बिची. ठीक है. और जो है उनके मतलब बिकॉज पेट्रियार्की लाइक पिट्स वुमेन अगेंस्ट ईच अदर, तो उनका आइडिया भी जो है सोसाइटी का फीमेल फ्रेंडशिप्स का भी यही होता है कि बस दे आर जस्ट अगेंस्ट ईच अदर फाइटिंग ओवर समथिंग, सम कॉम्पिटिशन. ठीक है ना, या तो वो लुक्स का होगा या अगर दो लड़कियों ने सेम कपड़े पहन लिए तो उसका प्रॉब्लम हो जाएगा. तो जो है यू नो दिस इज ऑल दे सी व्हेन दे लुक एट एक दिस आइडिया इज आल्सो वेरी मेजरली पोर्ट्रेड इन मूवीज वगैरह कि ना ऐसे दीज वेरी hot females will come and they will say मेरी तो कोई और female friends हैं ही नहीं because I'm so hot that I'm always seen as a competition. And because they are very hot कि oh I crave female friendships, I only have males in my life as guys. friends. और वो बहुत cool लड़कियां मानी जाती हैं कि oh यार शी
ओ ये तो गेमिंग करती है या ओ ये तो स्पोर्ट्स खेलती है, एंड शी डजंट सिट अराउंड जस्ट टॉकिंग अबाउट एंड आल्सो शी इज ठीक है, ऐसे as movies if में gaming is not a frivolous aspect in itself. I mean, we all do a lot of frivolity, it's fine. एंड माई पॉइंट इज ऑल्सो दैट ये जो रिप्रेजेंटेशन है ऐसी लड़कियों का, दैट हु से दैट ओके वी डू नॉट हैव, दे आर ऑफन वेरी हॉट एंड सेक्सी वुमेन इन मूवीज और सीरीज व्हेन समझ गई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. आई थिंक आई लॉस्ट माई ओन पॉइंट कि जो ऐसी दीज वुमेन हु कम अप ना एंड से दैट कि अरे मेरे तो ऐसे फीमेल फ्रेंड्स है नहीं, दे आर always represented as these very hot, slim, beautiful, fair women. कि इसलिए I don't have other female friends because I'm always seen as a competition. Maybe the implication being that women are just jealous of other exactly. हाँ, yes, that is what I want to say. मतलब कि ना मेरे दिमाग में अभी थोड़े दिन पहले ना मैं ऐसे ही खाना खाते हुए कुछ देखना चाह रही थी, तो वो मूवी है ना 27 ड्रेसेस, तुमने देखी है वो मूवी जिसमें शी इज अ ब्राइड्समेड है ना, तो उसमें उसकी बहन होती है ना, उसकी बहन ऐसी सी होती है कि आई डोंट हैव फीमेल फ्रेंड्स, एंड वो कितनी ऐसे टेस्ट नाम होता है उसका, हाँ वो इतनी खूबसूरत सी होती है और उसका क्रश फॉल्स फॉर हर एंड ओके एंड देन एंड ये इसमें तो हद ही कर ली कि दीज आर टू सिस्टर्स, नॉट एग्जैक्टली फाइटिंग बट दीज आर टू सिस्टर्स हु फॉल फॉर द सेम गाय. This is also very twisted kind of female relationship, right? ऐसा होता है क्या, पता नहीं, मुझे नहीं पता. आई थिंक हॉलीवुड मूवीज में ऐसा होता है, बट हाँ मीडिया में तो बस यही होता है कि हाँ भाई लड़कों के ऊपर लड़ी होंगी या कपड़ों के ऊपर लड़ी होंगी या जेलस होंगी कि वो शी लुक्स सो गुड या वो, एंड बाय एंड लार्ज इज दैट, एंड इट स्टार्टेड चेंजिंग, बट आई डोंट थिंक दे हैव रियली tapped into what female friendships are like. In fact, it's not just media, मतलब हमारे everyday लोगों में भी there is this misconception as to what female friendships are like. These myths about और कितनी iconic Hollywood movies भी तो है, जैसे अपनी Mean Girl type मूवी जो है जिसमें लिंडसे लोहान ये सब है, इनका भी तो यही आइडिया. These are girls, high school girls who are being bitchy to each other और पता नहीं कुछ ना कुछ वो चीजें कर रही हैं. हाई स्कूल मूवीज में वैसे मैंने अभी सोचा कि हाई स्कूल मूवीज में लड़कियां जब मीन लड़कियां दिखाते हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे से जेलस होती हैं, और जब मीन लड़के दिखाते हैं तो इनका एक ग्रुप होता है जो आपस में सही होता है, सिर्फ बाहर वाले को बुली बाहर वालों के लिए. तो इट्स जस्ट दिस आइडिया दैट वुमेन जस्ट कैन नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर, व्हिच इज जस्ट नॉट ट्रू. And also this idea that when these women are coming together, when they are forming friendships, तो इट स्टार्ट्स बिकॉज देयर इज अ बॉय इन पिक्चर, कि उनका कॉमन थ्रेड होता है वो क्या तो एक लड़का ही होगा कि या तो कॉमन लव इंटरेस्ट होगा. मूवी अबाउट वुमेन बॉन्डिंग ओवर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. हाँ, exactly. Yes, that makes so much sense. Although I have friends with whom I have bonded or reconnected over political ideologies, and I mean they're not people I would share stuff about boys with at all. मतलब वो हर फ्रेंडशिप जैसे अलग होती है, तो there are people I have reconnected with because we shared political ideologies. But इस चीज को तो मीडिया सोसाइटी को भी फायदा करने को तैयार ही नहीं कि वो हमें भेजा होता है. we perceive society, we understand society, we can contribute to society. नहीं, all we do is manis and paddies in my hair, and which again to be honest मतलब इसको भी इतना this is also fine. This is also something we talk about. I mean, if you look at our friendship, और लड़के भी करा ले थोड़े, और लड़के भी थोड़े बैनी पैजी करा ले, थोड़े से तमीज वाले नाखून दिखे उनके, ये नहीं कि गन भरी हो उनके अंदर, करा ले वो भी जाके थोड़े बैनी पैडी. I had this very cool teacher. Okay. अब तो मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक भी थी, लेकिन उस वक्त जो है मुझे बड़ी कूल लगती थी, एंड शी इज़ द वन जहाँ से जो है मेरा थोड़ा सा आइडिया चेंज होना शुरू हुआ. बिकॉज वहाँ जब तक मैं ए लेवल में गई तब तक मैं कूट के मुझ में इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी भरी थी. आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स, आई डोंट लाइक ड्रेसिंग अप, आई विश आई वॉज अ बॉय, गर्ल्स आर सो, ठीक है, इवन दो द ओनली फ्रेंड्स आई हैड वर गर्ल्स, फिर भी यू नो आई हैड दिस यू नो इनसाइड. So this teacher of mine, she was so she just had this whole personality, और काफ़ी बार क्लास में बच्चों को सुना रही होती थी तो it was just everybody would burst out laughing. तो एक बार जो है कुछ लड़कों से उनकी वो भी होती थी मुंह मारी, like they liked the fact that she gave them attention जब उनको सुना रही होती थी.
तो एक बैंटर टाइप होती थी, तो किसी बंदे ने कुछ बोला था पेडिक्योर का कि ओ क्या व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पेडिक्योर, समथिंग लाइक वुमेन जस्ट वांट टू गो टू पेडिक्योर. तो शी सेड कि और वो बोलती भी बड़े अच्छे क्लासिक उर्दू स्पीकिंग स्टाइल में थी. तो मियाँ तुम भी कभी जाके पाँव धुलवा लिया करोगे. यू नो व्हाट पेडिक्योर्स डू? Pedicures prevent fungus. Do you know what gaming does? That you all do all day instead of getting pedicures, it turns your brain into jelly. So वो इस तरीके से ना she would confront these boys and have all these opinions, which was so fun. It also started changing my perspective कि हाँ भाई मतलब हर चीज़ जो लड़कियाँ करती हैं that is frivolous and stupid and just giggly stupid girls who have nothing to contribute to society. और हर बोंगी चीज़ जो बंदे करते हैं They are always ready कि अरे देखो so cool. इसका एक और एग्जाम्पल तब भी था जब सॉकर का फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था और जो है इंग्लैंड सॉकर बन जाओ, तुम भी गोरी बन जाओ. सॉकर भाई इट्स जस्ट मैं फुटबॉल बोलूं या सॉकर बोलूं. सॉकर इज अमेरिकन और फुटबॉल इज एंड आई हैव बीन कॉलोनाइज्ड बाय बोथ, सो मैं कभी-कभी अपनी कॉलोनाइजेशन में कंफ्यूज हो जाती हूं. फुटबॉल इज आल्सो फुटबॉल इज देसियर देन सॉकर. एटलीस्ट सॉकर से तो बेटर फुटबॉल ही है. यस बिकॉज़ देसी कॉलोनाइजेशन बेसिक वाली है जो सॉसर फुटबॉल का वर्ल्ड कप था. Going to my indigenous self, फुटबॉल का वर्ल्ड कप था और इंग्लैंड के जो इंग्लिश फैंस जो हैं they're very rowdy. English football fans are very rowdy and I think the whole internet hated them when they started doing it's coming home, like the World Cup is coming home because their team started doing well, which it did not. It lost and everybody was really happy. लेकिन वो जो है उधर venues पे जाकर ना they did इतनी बदतमीजी they would do, like किसी और का national anthem चल रहा है तो they would मैं देखा था. और वो जो है vandalism कर दिया और पता नहीं क्या क्या racist comments पास करना. हाँ और इंग्लिश फुटबॉल फैंस आर वेरी रेसिस्ट. उस वक्त काफ़ी कुछ लोगों ने जो एशियन ब्रिटिश लोग हैं उन्हें बताया भी था कि भाई अगर हम स्टेडियम के पास होते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है. देयर वाज अ गर्ल who lives near the stadium, who lived near पता नहीं आर्सेनल का स्टेडियम ये क्या, and she was like मैच डेज पे मुझे हमेशा I have to be careful, stuff like that. All those stories came up. उसमें एक किसी ने ये ओपिनियन भी लिखा था and I really liked it कि we demonize we really ridicule young girls who are crazy about pop stars या K-pop के बारे में या वेस्टर्न पॉप स्टार्स के बारे में कि ओ दिस सो स्टूपिड या इनको तो क्रश हो जाता है या ये तो ऑब्सेस्ड होती हैं और सारा वक्त. बट देयर ऑब्सेशन और वट एवर इट इज़, ऑब्सेशन बीइंग अ नेगेटिव वर्ड, जो भी उनका एक होता है इट्स नॉट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग समबडी एल्स. At the same time, you have all these male soccer fans who are actually causing vandalism, but sports is still cool. It's not something like you look like, oh, you're so dumb. Because that is the implication of teenage girls is they're just so dumb and frivolous and and all these men who are vandalizing, sports is still cool. And that is what the person wrote, that I never want to hear about teenage girls being dumb or anything, because look at what you and your obsessions do. But it is और यही जो थिंकिंग हमारी औरतों के लड़कियों के बारे में और लड़कों के बारे में वो उनकी फ्रेंडशिप से भी चल जाती है कि जितनी टॉक्सिक भी लड़कों की फ्रेंडशिप हो, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग देयर ऑल टॉक्सिक, बट जितनी भी हो इट्स ऑलवेज लाइक ओ इट्स सो कूल, इट्स सो फन, देखो वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, दे डोंट माइंड. और लड़कियां तो हर चीज़ में बुरा मान जाती हैं. आई मीन देयर शुड बी बाउंड्रीज. ट्रू. एंड ऑल्सो ये भी कि लड़कियां बुरा मान जाती हैं, लड़के टांग खींचते रहते हैं, तो ये नोशन भी है कि जो मेल फ्रेंडशिप्स होती है ना, द फ्रेंड्स आर वेरी कैंडिड, और ऐसा माना जाता है कि दिस फीमेल फ्रेंडशिप्स की ना ये फीमेल्स अपना एक दूसरे में बड़ी सुपरफ्लूअस कमेंट्स पास करते रहते. दे आर ऑलवेज प्रेजिंग ईच अदर, दे आर नॉट कैंडिड, दे आर नॉट कॉलिंग आउट ईच अदर. बट ऐसा नहीं होता. मतलब कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं कि I mean, why do you assume that the comments we pass on each other to build each other up are superfluous? I mean, maybe if you try positive comments, you would know what they do to a person. आई थिंक मैंने ना थोड़े दिन पहले अपने ग्रुप पे एक वो भेजा था, तो मैं देखा था वो कौन है अपना ये रेसी अमेरिकन हु लिव्स इन यूएस, अमेरिकन यूएस ऑब्वियसली, जिसका वो करता था वो पेट्रियट एक्ट वाला, मैं नाम भूल गई उसका. हसन मिनाज.
उसका नाम हसन मिनाज है क्या? पता नहीं मेरे दिमाग में, पता है मेरे दिमाग में मिनाज है। ओके, बिग गैप इन पॉप कल्चर नॉलेज, बट ओके। अरे पता है मेरे ना मिनाज आ रहा था और मेरे दिमाग में फॉर सम रीजन निक्की मिनाज आ रहा था। अरे that is such a joke that he does also. I'm Hasan Minaj brother. Yeah, really. I know I'm not related to Nicki Minaj because सारे गोरे जो समझते तुमने भी वही किया। अरे नहीं, इन माय डिफेंस मैं और साशा थोड़ा दिन पहले निकी मिनाज की बात कर रहे थे। वो लूइस हैमिल्टन है ना, वो एक टाइम पे निकी मिनाज को डेट कर रहा था, तो हम काफी डिसअपॉइंट हुए थे कि निकी मिनाज में क्या, मतलब निकी मिनाज दे आर टू वेरी डिफरेंट पीपल, तो इसलिए मेरे दिमाग पे दिन से निकी मिनाज चल रहा है। इन माय डिफेंस एनीवे, कमिंग बैक तो हसन मिनाज, आई थिंक पता नहीं मैं तुम्हें भेजा था नहीं भेजा था, वो बोल रहा था कि ना मैं एक दिन इंस्टाग्राम खोला तो मैंने अपनी वाइफ का इंस्टाग्राम कमेंट्स देखे बीना के, तो इसमें एवरीवन लाइक ओह सो कूल, अडॉर्स, ब्यूटीफुल, कि यू मेड माय डे, गॉर्जियस, ब्रेथटेकिंग। तो मैंने कि हाँ तो ठीक है, औरतें ऐसा करती है, इसमें खराबी क्या है, तुम भी करके देखो, इट इज गुड टू सपोर्ट ईच अदर इसमें। और वाई हम यही करते हैं फिर? वाई डू यू थिंक दैट वी डू नॉट लाइक फीमेल्स कैन नॉट हैव प्रॉपर प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशंस? ऐसा भी नहीं है कि बस यही करते रहते हैं। तो दिस इज लाइक दीज आर सम मिथ्स अराउंड फीमेल फ्रेंडशिप। पता है सबसे एग्जाम्पल मेरे दिमाग में क्या था, तुम ग्रेस एनाटॉमी देखती थी क्या? हाँ, चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं होता। बट 10 सीजन तो देखे, 10 सीजन बाबा ने काफी देखे तुमने, तो मैं भी देखती थी एक टाइम पे, फिर उसके बाद गेव अप। लेकिन उसमें मुझे ना यांग और ग्रे की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लगती है ना? आई थिंक इट इज लाइक इट डाइवर्ट्स फ्रॉम दीज टिपिकल नॉर्म्स which are associated with female friendships. It is not they bond over stereotypical. their dark thoughts etc. Dark and their profession also. And ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि आदमियों की बात नहीं करते वो लोग, कि they are talking about their husbands, they are trash talking men, they are crying over men, but that is not the only thing they are doing. And even if they are doing that is because they are friends and they are technically the only people there for each other because they are working in such a competitive environment. बाद में उनकी वो भी होती है, बाद में उनकी लड़ाई भी होती है, तुमने देखा है? When they are a little jealous of each other. अच्छा, मैं इतना नहीं पहुंच पाई शायद। नहीं वहां तक, हाँ, तो थोड़ा सा वो होता है उस वक्त जो है, थोड़ी सी मुझे मेरिडिथ ग्रे अनोइंग लग रही होती है when she is jealous. वो तो मुझे भी थोड़ी सी अनोइंग लगती है, लेकिन जो है एंड में जो है जाते वक्त तुमने वहां तक नहीं देखा ना when Christina Yang leaves. मुझे पता है she leaves, बट मैंने देखा नहीं, बट I know she leaves. when she leaves तो वो आखिरी कॉन्वर्जेशन मेरिडिथ से ये करके जाती है कि you know it is some, मैं पूरा भूल गई, इट्स वेरी आइकॉनिक और इंटरनेट पे वो काफ़ी होती है, जो conversation where she explains to him कि you know you cannot always you know you don't always have to follow him because he is not the son you are. like उसकी और डेरिक की रिलेशनशिप में उस वक्त कुछ चक्कर चल रहा होता है, तो जब वो उसको ये अपलिफ्ट करके जाती है कि you know yes you have your husband and yes you have to वो but you have to recognize your worth also. So candid conversation. And I think this is a very central thing of female friendships. This building each other up. True. And I have personal experiences of this. और भले ही किसी भी फॉर्म में, भले ही ठीक है कभी कभी आप सुपरफ्लुअस कमेंट्स पास कर रहे हो, कभी कभी यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना बिल्डिंग ईच अदर अप. इट कैन बी इन एनी फॉर्म. हाँ, फॉर एग्जांपल आई कैन गिव एन एग्जांपल अपना कि व्हेन आई वाज इन ए लेवल्स, अच्छा तो मेरा यूजुअली ये पैटर्न रहा है, आई एम वेरी बैड एट कंटिन्यूइंग फ्रेंडशिप्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज मेंटल हेल्थ इश्यूज दैट आई हैव. ठीक है, yeah, should I be worried? Oh, you should have been worried. I was very worried when we were leaving Malaysia, but that pattern has not continued here. So yeah, I think we had a conversation also. Anyways, जब पर याद मेरे बाल डाई कर रहे थे. We did? I don't remember. All I remember from that is making, you know, Adiala and Tihar jail jokes. कि तुम आओगी तो तुम आओगे, all that stupidity. So anyways, बाद में याद दिलाना, मुझे याद नहीं है, लेकिन जो है but I've had problems with staying in touch with friends वगैरह because you know अभी भी I've started trying to break these patterns, लेकिन I have this habit of खुद ही isolating myself and blah blah, मतलब मेरे mental health issues हैं और वो मेरा phase आ जाता है खुद ही. तो मेरा ये मसला है कि when and I have had friendships that have ended badly.
लेकिन उस दिन जब मैं सोच रही थी तो मैंने उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया. लाइक आई फील लाइक ओ बैड फ्रेंडशिप, इसके बारे में सोचो ही नहीं. लाइक आई लेबल्ड द होल फ्रेंडशिप बैड. लेकिन उस दिन बैठ के मुझे इतनी वार्म फीलिंग्स आ रही थी अबाउट माई टाइम एट ए लेवल्स. तो मुझे याद आया देयर वॉज दिस फ्रेंड आई हैड एंड आई एम नॉट इन टच विथ हर एनी मोर. और हमारे जो है अब वैल्यू सिस्टम्स भी, बिकॉज आई हैव चेंज्ड अ लॉट, तो हमारे वैल्यू सिस्टम्स भी बहुत अलग है. सो आई कैन नॉट इमेजिन बीइंग फ्रेंड्स विथ हर नाउ एट ऑल. बट दैट मोमेंट इन टाइम इज स्टिल सो प्रेशियस. आई रिमेंबर मैं जो है, हम मैथ्स की क्लास में साथ होते थे. हमारा भी कुछ उस वक्त भी 4-5 ऐसे लड़कियों का ग्रुप था. सो आई ऑलवेज हैड गर्ल फ्रेंड्स ग्रुप एंड दे ऑलवेज हैड अमेजिंग मोमेंट्स इन दैट. तो उसमें हम बैठे हुए थे मैथ्स की क्लास में और वो था कि सर ने एक क्वेश्चन दिया था करने को, ठीक है. अब वो सर थे भी ना डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स भी थे, ओके. एंड ही हैड दिस क्लासेस. तो उनकी क्लास में अगर कोई अच्छा परफॉर्म करना है तो अब पूरी स्कूल को पता चल जाता था. तो ऐसी वाली क्लास थी, ठीक है, कि ओ दिस स्टूडेंट और ये वो. और मुझे जो है, जब भी मैं ए लेवल्स में गई थी, ऑल गर्ल्स स्कूल से गई थी, मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ना ज़मीन पे था. ओके, सो पीपल सॉ माई ग्रेड्स एंड वर लाइक ओ यू नो यू आर स्मार्ट. और मुझे तो कख नहीं लगता था कि मैं स्मार्ट हूँ. मुझे सिर्फ अच्छा लगता था, लोग बोलते हैं. माई ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम ज़ीरो था. तो मैं बहुत डरती थी क्लासेस में बैठी हुई, ओके. कि जो है अगर मैंने गलत जवाब दे दिया तो ये. सो आई यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट एंड यू नो माई पर्सनैलिटी. कैन यू इमेजिन अ क्वाइट मी? देयर वाज अ वेरी वेरी क्वाइट मी इन स्कूल. ऐसे भी दिन थे. तो स्कूल में आई वुड बी क्वाइट. तो सर ने एक सवाल करने को दिया और वो मुश्किल था सवाल इसलिए क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ाया था. लेकिन मुझे याद आया कि मैंने ऐसा पहले कुछ ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ था और मेरी एक दोस्त मेरे साथ थी, ठीक है. और उसने ना मुझे कुछ कैलकुलेशंस करके दी, मुझे थोड़ा हेल्प किया साथ में, एंड आई डिड द क्वेश्चन, ठीक है. और सर बोल रहे थे जिसने भी किया है वो आके इधर करके दिखाए, बिकॉज ही न्यू इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट पीपल वोंट बी एबल टू सॉल्व इट. तो मैंने कर लिया ना. उसके बाद में बैठ गया. वो 60 लोगों की क्लास थी, 60 लोगों की क्लास, जिसमें 75% पीपल आई डिडंट नो. एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस वाज माय सेकंड ईयर एट ए लेवल्स, आई वाज स्टिल स्कैर्ड. मुझे नहीं जाना था ऊपर, ठीक है. मैं यूँ करके बैठ गई कि व्हाट इफ दिस इज़ रॉन्ग. मैंने शुरू में ही सबसे पहले ही आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू डू इट. तो मैं बैठ गई. तो मेरी जो फ्रेंड मेरे साथ बैठी थी, जिसने हु हैड हेल्प्ड मी सॉल्व इट, उसने देखा कि मैं फजूल हरकतें कर रही हूँ. तो उसने मुझे छोड़ा और डायरेक्ट सर को बताया कि सर इसने कर लिया है. एंड शी पुश्ड मी. सो आई वेंट एंड देन आई सॉल्व इट. और उसके बाद सर ने कहा ओह ये तो सही है और ये तो परफेक्ट स्टेप्स हैं और ये वो, और ये सारी कहानी हुई. और जो है मतलब देयर वाज सो मच वैलिडेशन आई रिसीव्ड देयर एज अ 18-year-old किड कि ओ यू नो यू सॉल्व दिस सम और ये वो, पूरी क्लास के सामने. और फिर जो है बाद में जो हम बाहर निकले तो अपेरेंटली उन्होंने अपने दूसरे सेक्शन को भी जाके बता दिया और लोग मुझे आके बोल रहे थे कि यार तुमने सम कैसे सॉल्व किया ये वो. अब मेरी जो वो फ्रेंड थी, अगर वो मुझे धक्का ना देती तो मेरा सही भी सवाल होता. मैं नहीं जाने वाली थी, मैं तो बैठ गई थी कि शिट व्हाट इफ इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज दैट इज़ हाउ हॉरिबल माई सेल्फ एस्टीम वाज कि मैंने सॉल्व कर लिया. लेकिन मैं बताऊंगी नहीं अनलेस समबडी एल्स डज इट. और फिर मैं बोलूँगी कि हाँ मैंने भी तो कर लिया था समथिंग सम शिट लाइक दैट. अब मैं बाद में आई टोल्ड माई फ्रेंड के किसी को मैंने बताने की कोशिश की, साथ ही मैंने कहा नहीं इसने मेरे साथ सॉल्व किया था. एंड शी वाज लाइक नो आई डिड कैलकुलेशंस फॉर यू बट यू आर द वन हु सॉल्व्ड इट, सो आई डिडंट डू एनीथिंग. तो this is for me what female friendships are about, like pushing each other and building each other up. कि भाई and you know so many women we all have these self doubts we have because of you know जो भी जिस भी society के crap से हम गुजरते हैं. तो it is beautiful to me how the other gets it, how the other relates to it. True. And then pushes you and says no you know this is your moment or this is you. And yeah, and there is just so much warmth I feel when I think about that. जब मैं I have a similar example. I mean I have a lot of similar examples. I'm sure अपन दोनों के पास ऐसे बतेरे एग्जाम्पल होंगे अगर अपन सोचेंगे करने बैठेंगे तो. बट सबसे टॉप ऑफ माई हेड जब मैं मलेशिया आई थी ना तो आई हैव ऑलवेज हैड बॉडी इशूज़ कि मैं मोटी हूँ, ये नहीं पहन सकती वो नहीं पहन सकती, तुम्हें तो पता ही है. फिर जब मैं बैंगलोर में थी ना तो वनीशा और मैं रूममेट्स थे तो मेरे तभी भी यही मसले चलते थे कि मैं ये नहीं पहनूंगी वो नहीं पहनूंगी. और वो निकाल के मेरे सूट के मुझसे तू ये क्यों नहीं पहनती, तू वो क्यों नहीं पहनती. तो मुझे तब भी पुश करती थी तू पहन. बट मैं उस टाइम कभी कभी मान जाती थी, कभी कभी नहीं मान जाती, कभी कभी बेचारी बोलती जाती थी, मैं सुनती नहीं थी उसकी. बट लेकिन जब मैं यहाँ पे आ गई तभी भी सेम इशूज़. बट लेकिन यहाँ पे आके क्योंकि बिकॉज आई वॉज अवे फ्रॉम होम, दिस इज अ न्यू कंट्री ऑल टुगेदर, नोबडी न्यू मी, तो फिर मैंने अपने आप को पुश करना
चालू करा, मैंने स्लीवलेस पहना चालू करा धीरे धीरे. फिर जब तुम लोगों के साथ अपन वी वेंट टू मलाका तो आई वोर लाइक वो मुझे पता भी नहीं क्या कहते हैं उसको जो मैंने पहना था मुझे काफी खुला खुला था. It was sleeveless and it had some kind of a bag but not a complete bag. And It was like some sleeves but not it was like a strappy thing. मतलब ऐसे पतली पतली लाइनें थी. क्या होपलेस है यार अपन दोनों. तो I could only find the courage to wear that because I knew that I am with you guys. ठीक है, तो आई न्यू इट वाज अ सेफ प्लेस, आई कुड वेयर इट. एंड ऑल्सो फिर जब मैं यहाँ पे आई थी तो आई स्टार्टेड वेयरिंग स्लीवलेस. तो मैं अपने ग्रुप पे वनीशा मिली, उन्नति, इन लोगों को भेजती थी. ये लोग इतने जेन्युइनली खुश होते थे. मैं नॉर्मल क्रॉप टॉप पहन के भी जो मैं पहले कभी नहीं पहनती थी, अगर मैं वो भेज के भी फोटो भेजती थी तो वो जेन्युइनली खुश होते थे कि अरे देखा हम तो तेरे को बोलते थे तू क्यों नहीं करती, तो अब ऐसे करा कर, वो करा कर, ये करा कर. तो दिस वाज जेन्युइनली हैप्पी फॉर मी. वो मलाका में भी यूपी में जेन्युइनली हैप्पी फॉर मी बिकॉज आई न्यू यू वर टेकिंग पिक्चर्स. निशा इतनी अच्छी फोटोज ली उसने मेरी बिकॉज इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी टू बी एबल टू वेयर दैट. तो दिस इज सो आई गेट इट व्हेन यू से दैट फीमेल फ्रेंडशिप्स, not exactly female friendships, that friends are supposed to be that thing in your life, right? They are supposed to uplift you. So no matter how it is being done, ठीक है, किसी भी तरीके सबका हर ग्रुप के अपने डायनेमिक्स होते होंगे ना. तो why do you have to bring out one gender because they have a particular way of doing that? Maybe they do have a particular way of doing that, maybe they do not have a particular way of doing that, but any way it is, why do you have to pull them down? Why? And it's not just कि हम जो है सिर्फ एक दूसरे को बहुत ही प्यार मोहब्बत से अपलिफ्ट कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे को डांटते भी हैं. Like, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम्हें डांटा और तुम्हें कहा कि अपनी क्रैप बंद करो. This is what it's about. You call each other out on your bullshit also. कि क्या बकवास है, don't do that, right? हाँ, I know. But these movies are सबसे I really want to trash talk 4 more shots and be ready. Go ahead, please. So have you seen 4 more shots की basic story क्या है? I haven't seen it. उसकी basic story क्या है? एक तो thank God तुमने नहीं देखा. तो it is just 4 उसके 2 सीजन है. तो sorry, उसके 2 सीजन हैं. तो these 4 friends, उसमें से एक भाबर, एक मुझे समझ नहीं आ रहा ट्रैश टॉक कहाँ से चालू करूँ, कुछ इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में. these 4 friends, एक जर्नलिस्ट होती है, एक शी इज इनटू फिटनेस इंस्ट्रक्टर होती है, एक होती है वो डिवोर्स्ड लॉयर होती है, और एक होती है वो कुछ भी नहीं करती होती है फर्स्ट सीजन में. Good. Yes, I was saying, why does everybody have to be so accomplished? एक फारिंग भी होना चाहिए. ठीक है. Good. Representation for the farings. And then in second season, this one day फारिक वाली second season में she starts doing stand-up comedy. Okay. So these are 4 friends. तो हम मेरे जैसे वेले भी होने चाहिए. We're always just figuring stuff out. यार तुम तो मैंने एक मुक्के ही मारू कि मेरे जैसे वेले भी होने चाहिए. मतलब वर्चुअल मुक्का पड़ेगा. ऑन रिकॉर्ड मुझे इस चीज की भी बहुत डांट पड़ती है whenever I'm too critical of my career choices. So anyway, these 4 people, as the names, these 4 girls, और जैसे सीजन का सीरीज का नाम है 4 more shots, they meet in a bar. ठीक है, वो अपने लाइफ से दुखी होके एक दे एंड अप इन अ बार एंड देन दिस इज हाउ दे फॉर्म देयर फ्रेंडशिप बिकॉज वो अपने गम दारू में डुबा रही होती है एंड दीज 4 गर्ल्स आर ड्रिंकिंग एंड देन दे फॉर्म अ फ्रेंडशिप. और फिर दिस इज लाइक द प्रेमिस ऑफ द होल सीरीज. ओके, फ्रेंड्स और उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, करियर प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, और एक डिवोर्स्ड होती है तो उसका हस्बैंड किसी और को डेट कर रहा तो उसकी एक छोटी बेटी होती है. सो यू गेट द प्रेमिस दैट दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग with their problems, but like this is but then they come together. What is the problem? Isn't it nice to have a show where women share their problems with each other? So these 4 are very rich women, okay, who can afford to come to a bar every day and drink expensive alcohol. And this is Bombay. You cannot freaking afford alcohol outside every fucking day. उसमें से एक होती है वो जर्नलिस्ट होती है. भाई नहीं मिलता जर्नलिस्ट को इतना पैसा.
कि वो इतने ऐसे बूजी कपड़े पहन ले और बूजी अपार्टमेंट में रह ले और फिर बूजी लाइफस्टाइल मेंटेन कर ले और फिर महंगी दारू पी ले. भाई नहीं होता इतना पैसा. बहुत ग्लैमराइज, आर्टिफिशियली इट इज सो ग्लैमराइज्ड. And then their idea of feminism, that despite their problems and despite their professional choices, their idea of feminism कि चलो ठीक है हमने साथ में दारू पी ली, हम खुली दारू पी सकते हैं, हम कितनी भी दारू पी सकते हैं, तो we are like such empowered women. मर जाओगे. ठीक है मर जाओगे, उसमें अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाएगी. ठीक है ठीक है. And then we talk about sex openly, we can talk about orgasms, and then we can talk about masturbation. So this is their one idea of calling themselves empowered, and these are very rich upper class women who can afford to indulge in antics like this. ऐसे कौन सी तुम्हें normal female group मिलेगा who can do this every day? सेकेंड सीजन के स्टार्टिंग में उसमें से एक जो होती है वो टर्की घूमने गई होती है, एंड देन शी हैज अ बॉय प्रॉब्लम ऑब्वियसली. तो जो बाकी की 3 होती है उसको सपोर्ट करने टर्की पहुंच जाती है. भाई कहाँ से भाई प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी एवर. आई एम नॉट फ्लाइंग आउट. लेकिन भाई कहाँ से साथ चलेंगे टर्की तो उधर भंड कर लेना, मैं उधर खड़ी रह के सपोर्ट करूंगी. अकेले मत जाना अगर ये सब करना है तो. मैं भाई कहाँ कैसे हो रहा है ये, मतलब कैसे होता है ये. एंड सिमिलरली वीरे द वेडिंग का भी यही इशू है. तुमने वीरे द वेडिंग देखी है? वीरे द वेडिंग में भी आपने बहुत ही बढ़िया. वीरे द वेडिंग में भी आपने गालियां दे दी और आपने छोटे कपड़े पहन लिए और आपने सेक्स के बारे में बातें कर ली. तो बस दैट इज द आइडिया ऑफ फेमिनिज्म. ठीक है. There's so much potential. Like you can share so much about what women go through as women. इतने छोटे छोटे तरीकों से भी. I mean, this is the basis of female friendship, right? हाँ मतलब I am glad कि चलो ऐसे नैरेटिव्स तो हैं चलो अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे और मूवीज में कि जहाँ पे फीमेल फ्रेंडशिप्स आई है. बिकॉज ऐसी आइकॉनिक फ्रेंडशिप हमेशा मेल फ्रेंडशिप्स ही रह चुकी है, ऐसी फीमेल आइकॉनिक फ्रेंडशिप्स नहीं है. तो आई एम ग्लैड कि चलो ऐसा रिप्रेजेंटेशन है. बट लेकिन दिस इज सच ए एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन ना. ऐसा नहीं, ऐसा हो इट इज नॉट अ रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन. फेमिनिज्म के वो अमीरों का फेमिनिज्म. जब सब कुछ हो गया तो हमारे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रक्चरल बिल्कुल भी नहीं है. Although women deal with structural problems and they deal with such इतनी जो भी the way patriarchy is skewed against them, which cannot be solved with a drink or with talking about sex or that you deal with daily. हाँ, और मतलब मैं चलो ये नहीं बोलूँगी छोटे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि प्रॉब्लम छोटे बड़े हो, प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स होते हैं चलो सबकी लाइफ में. और उसने जो बताया ना जो कुछ नहीं करती होती, जो सेकंड सीजन में स्टैंड अप कॉमेडी करती रहती है, उसमें मतलब कि शी हैज़ एन इमोशनली अब्यूजिव मदर एंड शी गोज थ्रू बॉडी इशूज. तो और जो दूसरी होती है वो डिवोर्स लॉयर होती है. तो वो सिंगल मदर होती है. अब उसका जो हस्बैंड होता है, एक्स हस्बैंड होता है, वो वापस रीमैरी कर लेता है, पता नहीं किसी को डेट कर होता है. तो शी इज ऑल्सो गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशनल ड्रामा. तो मतलब मसले हैं, आई एम नॉट डिनाइंग कि आई डू नॉट हैव प्रॉब्लम्स, बट लेकिन द वे इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड कि वो कैसे डील करते हो उसको कि चारों साथ में आ गए अपने. so dealing is not personal growth and character growth और अपने लिए stand up करना सीखना और pattern समझना और एक दूसरे को इस journey में uplift करना. It's just कि चलो let's travel and let's have shots and let's do talk about कि मतलब आपने female friendship कैसे दिखाया that you are being there for each other कि अगर चलो किसी दूसरे देश में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उठ के चले गए. ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट रियलिस्ट. मेरा बस ये प्रॉब्लम है, इट इज नॉट रियलिस्टिक. और ऐसे सेक्स इन द सिटी में भी एक सीन ऐसा ही है कि जब वो उसका पति उसको छोड़ के, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, जिसका हस्बैंड मना वो शादी पे ही डजंट टर्न अप फॉर हिज ओन मैरिज. तो उसका जो हनीमून होता है, चारों चली जाती है उसके हनीमून पे. अरे भाई आपके बच्चे हैं, यू हैव अ करियर, तो दिस इज नॉट रियलिस्टिक. अब सब छोड़ छाड़ के पहुंच जाते हैं ये लोग. एक तो पैसा है इतना, कहाँ से मिलता है इतना पैसा? मुझे भी चाहिए कि मैं सब छोड़ छाड़ के चली जाऊँ. And that is not how you have to be there. I mean, you know, there are so many instances and so many difficult moments in which we as a group have been there for each other only on WhatsApp because that is all we could do. But exactly. just even being there on WhatsApp, the way you are there,
The way you are there matters, right? Exactly. What you contribute, Exactly. the space you create, that matters. True. Like exactly. we couldn't all just leave our places and just go physically be there. Yeah. Oh, we're flying to you. और Because we could, but after Malaysia, the open space, उसके बाद everybody had so many issues. सबके कुछ ना कुछ मसले हुए and everybody has had that safe place, WhatsApp, virtual space to come and be there for each other. तो ऐसे जब चीज़ें दिखाते हैं ना फीमेल फ्रेंडशिप्स में कि चलो उठ के चले गए और फिर साथ में बैठ के दारू पी ली, एंड ये मोमेंट्स भी इम्पोर्टेंट हैं, चलो कि आप यू आर सिटिंग टुगेदर एंड यू आर ड्रिंकिंग, बट दैट इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट ऑफ that is not the basis of the relationship. Because these things are called the female friendships and these things are also called the idea of feminism. तो मुझे लगता है काफी preachy सा feminism है, काफी woke ऊपर वाला feminism लगता है मुझे, जैसे वही white feminism. वही ना, that this doesn't seem to have any this doesn't seem to be addressing any structural issues, या मतलब उसके अंदर जो solution है उसमें वो इस तरीके से ये बैठ के conversations या बात नहीं कर रही as to how difficult this is or how it needs to be tackled, या एक दूसरे को uplift कर रही कि okay you are down but this is like, you know what we do for each other a lot कि भाई when one is down we're like, you know, your emotions या your anger या your sadness whatever it is valid, you know, and just ये assurance देना या एक emotional support देना proper तरीके से, that is the solution, not just like brushing aside all these issues and not discussing their core is not the solution. तुमने वो मूवी देखी है आयशा टाकिया की और गुलपना की डोर? No. जिसका वो बड़ा फेमस सा गाना है, ये हौसला कैसे, मुझे गाना भी याद नहीं आ रहा, ये हौसला कैसे रहे, हाँ मंजिल मुश्किल तो क्या, ये वाला? I love the song. I haven't seen the movie. प्लीज वॉच दिस मूवी, इतनी प्यारी मूवी है. एंड जब मैं फीमेल फ्रेंडशिप्स की बात करी ना, सबसे पहले मेरे दिमाग में यही मूवी आई थी कि इट इज सच अ ब्यूटीफुल मूवी. उसमें क्या होता है, गुलपना का और जो आयशा टाका का हस्बैंड होता है ना, ये किसी तो दूसरी कंट्री में, दुबई वगैरह में पता नहीं काम करते होते हैं. तो फॉर सम रीज़न क्या होता है कि ना गलती से गुलपना के हस्बैंड से आयशा टाका के हस्बैंड को पता नहीं कुछ तो बात कर रहे होते हैं, या फिर मुझे आई हैव नो मेमोरी, बट लेकिन वो बालकनी से गिर जाता है आयशा टाका का हस्बैंड, और उसकी डेथ हो जाती है. तो उसका जो ब्लेम होता है ना, वो गुलपना के हस्बैंड पे आता है. तो गुलपना को होता है कि इफ़ यू वांट टू हेल्प योर हस्बैंड, इफ़ यू वांट कि तुम्हारे हस्बैंड को कुछ जेल वेल ना हो, तो उसको एक लेटर लेके आना होता है आयशा टाकिया से टू हेल्प हर सेव हर हस्बैंड. ठीक है, तो वो आयशा टाकिया जहाँ पे रहती होती है वो वहाँ जाती है. तो उसमें भी ट्रोप तो ये दैट दे स्टार्ट अ फ्रेंडशिप बिकॉज a man is involved, but this is a very different dynamic altogether. It's just such a beautiful friendship because because she's a new widow, और पुराने टाइम पे गांव में ऐसे होता था कि ना she can't wear anything now, वो एक सिंपल से कपड़े पहन के रखते, she can't eat anything, वो घर के बाहर भी नहीं आ सकती, she can only come out to go to the temple, और जब वो मंदिर जाती होती तभी वो गुलपना से मिल पाती है. And this is how their friendship begins. तो इसमें वो कितने अच्छे मोमेंट्स है कि ना वो कुछ खा नहीं सकती बिकॉज शी इज़ अ विडो नाउ, तो गुलपना उसको ना गोलगप्पे स्नीक कर रही होती है पीछे से. तो दिस इज लाइक जस्ट वन मोमेंट, बट ऐसे इतने अच्छे मोमेंट है. तो दिस इज हाउ देयर फ्रेंडशिप बिगिंस. और फिर एंड में जाकर उसको बताना पड़ता है कि मैं क्यों आई थी वगैरह वगैरह. तो थप्पड़ के लगाते हैं उसको कि हाय, मतलब कि तो काफ़ी रियलिस्टिक थप्पड़ लगाते हैं कि हाउ कुड यू डू दिस टू मी, शी इज़ लाइक लिटरली हर्ट. बट लेकिन मूवी एंड्स ऑन दिस नोट. ऐसे ट्रेन सीन चाहिए मुझे, DDLG वाले ट्रेन सीन नहीं चाहिए. मूवी एंड्स ऑन अ नोट कि वो इसको साइन करके दे देती है कि हाँ चलो ठीक है, यू कैन सेव योर हस्बैंड. एंड आयशा टाकिया वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम द ओप्रेसिव सिस्टम शी इज गॉट इन, बिकॉज वो विडो होती है, उसको कुछ भी करने को अलाउड नहीं होता है. लाइक शी जस्ट उसको एकदम अब्रप्टली अपनी लाइफ जीनी खत्म करनी पड़ती है. शी कांट डू एनीथिंग नाउ. तो गुलपना जा रही होती है तो वो बोलते तुम क्यों नहीं चलती मेरे साथ. और वो स्टेशन पे होते हैं और गुलपना ट्रेन में होते हैं. गुलपना चली जाती है ट्रेन में, फिर वो अपना हाथ निकालते हैं, वो भक्ति हाथ पर के ऊपर चढ़ जाती है. So these are the kind of amazing. I know, this is the kind of train scenes we need. And this is so symbolic also of how exactly you know, I know, female friendships have this power to pull you out of मैं यही बोलने वाली थी अभी, you know, of your life. मैं यही बोलने वाली थी. इतना पावरफुल सीन है, तुम देखना उसको.
जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है, मतलब द होल पिक्चराइजेशन, द सिनेमेटोग्राफी इज वेरी नाइस, पूरा सीन देखना। तो मतलब दीज आर द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन वी नीड। और ये काफी पुरानी मूवी है, आई थिंक डोर वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, मुझे ऐसा लगता है। काफी पुरानी मूवी है, मुझे याद नहीं है ईयर, बट ऐसे मूवीज भी है। मेन स्ट्रीम पॉपुलर मूवी तो नहीं है ये। नहीं थी। एक तुमने वो देखी है पार्ज्ड करके आई थी, राधिका आप्टे की, और मुझे बाकी एक्ट्रेस का नाम नहीं पता। उसका भी वो तीनों फीमेल, एक लिव इन अ स्मॉल विलेज, आई थिंक समवेयर इन गुजरात वगैरह। उसमें से एक होती है, शी इज अ डांसर, ओनली दीज ट्रैवलिंग सर्कस टाइप जो इवेंट्स होते हैं, इसमें देयर इज वन गर्ल फीमेल डांसर। तो वो होती है। एक जो होती है वो विडो होती है, उसका एक लड़का होता है, राधिका आप्टे होती है, शी इज मैरिड बट देन उस पे मतलब कि शी इज इनफर्टाइल, बट लेकिन लास्ट में पता चलता है वो इनफर्टाइल नहीं होता, उसका हस्बैंड इनफर्टाइल होता है। बट लेकिन आदमी लोग तो कभी टेस्ट कराते ही नहीं, इट इज ऑलवेज द फीमेल हु इज ब्लेम्ड। तो वो बहुत अच्छी तीनों फ्रेंड्स होती हैं। तो वॉच दिस मूवी ऑल्सो, these are the kind of these movies also, क्या बोल रही हूँ मैं, कि ऐसी मूवीज भी हैं, ऐसी मूवीज भी हैं। एंड देन ऑन द अदर हैंड वी हैव मूवीज लाइक 4 More Shots, ये सीरीज लाइक 4 More Shots, और ये वी द वेडिंग, जितना मुझे गुस्सा आता है। पता देयर इज दिस वन टेस्ट, इट इज कॉल्ड द बेगडेल टेस्ट। तो ये टेस्ट इज डन टू चेक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन मूवीज एंड फिक्शनल बुक्स वगैरह। तो एक कोई बेगडेल करके एक फीमेल स्कॉलर थी, उसने टेस्ट निकाला था, मैं पूरा नाम तो भूल गई उसका फर्स्ट नेम क्या था, बट उसका सरनेम बेगडेल होता है। तो तब से दिस टेस्ट इज कॉल्ड द बेगडेल टेस्ट। तो इस टेस्ट के 3 क्वेश्चंस होते हैं। इफ अ मूवी और अ पीस ऑफ आर्ट या फिर फिक्शनल बुक, इफ इट पासिस द बेगडेल टेस्ट, देन इट सेज कि हाँ चलो ठीक है, अप्रोप्रिएट, नॉट अप्रोप्रिएट बट रिक्वायर, लाइक सही तरीके से, नॉट इवन सही तरीके से, एडिक्वेट फीमेल रिप्रेजेंटेशन है। तो उसके 3 क्वेश्चंस होते हैं, आई रोट देम डाउन। एक तो होता है कि आर देयर मोर देन 2 वुमेन इन द मूवीज, इन द मूवीज क्या है, आर देयर more than 2 women in the movie or whatever the series is, and are they like properly named, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि ठीक है, फीमेल कैरेक्टर्स तो हैं, बट डू दे ऑल्सो टॉक टू ईच अदर, लाइक डू दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, डू दे इंगेज विद ईच अदर। और लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है दैट डू दे टॉक अबाउट समथिंग अदर देन मैन। तो ये 3 मेजर क्वेश्चंस है। सो इफ अ मूवी और व्हाटएवर, ऐसे नॉर्मल कोई वो भी देखो, अगर कोई एक नॉर्मल भी लाइक मैं के ड्रामास बहुत देखती हूँ, तो अगर मैं वो देखूँ या कोई वो देखूँ रोमांटिक, उसमें भी ज़्यादातर ये होगा कि द जो कॉन्वर्जेशन होगी, चाहे वो जिस भी बारे में, कभी ये भी होता है कि देयर विल स्टार्ट आउट एज एनिमीज और अच्छी रिलेशनशिप हो जाएगी, जो भी, जैसे लीगली ब्लॉन्ड में एल वुड्स की होती है अपने वो जो एक्स बॉयफ्रेंड की उसके साथ, के शुरू में दे स्टार्ट आउट एज वो और एंड में उनकी अच्छी कम टुगेदर रिलेशनशिप हो जाती है। बट इट इज ऑलवेज, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज men that we come together and we talk to each other only because a man was involved। और अच्छा, क्योंकि हम मॉडर्न और अब अच्छे हैं, तो इवेंचुअली द वुमन विल सी कि अच्छा ये तो आदमी तो फजूल है, लेकिन हमारी तो आपस में इतनी अच्छी बन रही है, तो चलो एटलीस्ट वो भी हो रहा है। लेकिन द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज मैन। द आइडिया इज दैट women just do not interact with each other and just think of each other as competition unless they have something that brings them together मजबूरी में, और वो मजबूरी में वो it's always a man that brings them together, that I have to talk to this bitch because you know this idea of like women so being they very always catty come together because of a man। हाँ, कि मतलब we do not come together or make friendships or connect with each other on anything other than men, which is not true, because for example, literally the reason I bonded with Nisha I should not tell her whole story yet, but literally the reason I just connected with Nisha in a taxi, somebody should, the first day we met was when I sat in a taxi and I saw her face in that, you know, in the dark. I didn't even see her face properly. But despite that, the first thing we talked about was the whole protests in India about the CAA and क्या है वो N whatever.
ठीक है, उसकी protest and what the law was, and she was explaining it to me and I was gasping at how much worse it is than I thought it was. And this politics is the reason we bonded. ठीक है, it wasn't because we were talking about a boy. In fact, बहुत सी बार ऐसा होता है that especially because of desi culture and whatever, that it is only when I feel I have felt this in a lot of my female friendship, that it is only after you have a certain level of comfort that you go and touch the topic of boy. Exactly. It does not start with that. There's a lot of discomfort, at least in Asian friends, when starting to talk about boys, because that is something you don't discuss with everybody. That is something you hide. ठीक है, until you're like okay, comfortable, chill है, and then you approach that topic. उससे पहले the way I bonded with you was over desi culture and relatives and how that all that shit. Remember, this is what we talked about our first meeting, about you talking about how the things you are bothered by and the things that I talked about, the shit I have to deal with, and we realized how similar that was, even though we come from different sides of the border. It was written in the stars कि एक दिन अपन साथ में आके that we'll start this whole feminist podcast. हम पहले मुलाकात से ही रैंट करें, हमने पॉडकास्ट भी शुरू कर दिया. पॉडकास्ट थोड़ा सा आशिमा का ज्यादा ड्रामेटिक हो गया था, तो मैंने थोड़ा डाइवर्ट कर दिया उस ड्रामेटिक पने से To be honest, okay, this is इस वक्त मुझे ड्रामेटिक लग रहा है, but to be honest, there are genuine moments I have that I have felt this warmth, yeah, this level of emotional connect with one or more or all of you, where I have felt that जितना हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप्स को जितना हम ज़्यादा इमोशनल तरीके से वो करते हैं ना, या उनको सेंटर बनाते हैं कि ओ ये है तो सब है जिंदगी में, राइट? आई फील लाइक इफ यू जेन्युइनली हैव गुड फ्रेंड्स, and if you have friends who are the source of your growth, yeah, who are the safe space you need in life, you can go down there and like do anything. Like for me, the thing is that I build a lot of walls around myself, and there is barely anyone in front of whom I can go and break down. Okay? And with you guys also, it doesn't come naturally, but now I push myself because I know I have this feeling in myself that, okay, this is a safe space, and if I break down here and if I just say things that that are incoherent in that breakdown और मैं नहीं समझा सकती, तो that is fine. Okay? To have that space, okay, whoever it's not necessary that a romantic relationship will give you that space. Okay, but वो एक emotional connect होना, it is genuinely, you do feel like एक तो you are so distracting with your sorry. Anyways, I genuinely feel sometimes उस टाइप की romantic टाइप की poetry या उस टाइप की poetry doesn't connect in a romantic relationship. It connects when you have that kind of friends, because relationships and these connections and these feelings with each other don't just have to be in a romantic relationship. They can be there in a platonic relationship. True. But हमें देखना नहीं है, हमें बस वो एक लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए और whatever. और also हमारा प्लेटोनिक वीर ज़ारा चल रहा है, कोई देख रहा है? नहीं देख रहा. I mean, we also have plans ना अपने भी ऐसे. चलो अगर these are the plans you need कि चलो सेटल किसके साथ हो गए, अपने तो प्लान है ही कि अपन कोई जाके सेटल हो जाएंगे, कुत्ता बिल्ली पाल लेंगे और चिल करेंगे आपस में भी. Today I had this thought कि if somebody wants to have a kid and somebody wants to raise a kid, ठीक है, and they're not married yet, females can come together and why can't platonic friends get together and do that? उस पे जो है लड़कियां होंगी तो उस पे गे का थप्पा तो लगेगा ही कि नहीं, you are definitely involved. I don't mind. वो तो एक वो होगा ही कि unimaginable to do that. But मतलब marriage isn't for everybody. Okay, true. I don't know if it's for me, but it might be. But just like I'm sure there are people out there for who want the joy
of a kid, Of but parenthood. why marriage isn't for them, and they might Exactly. really connect with or see eye to eye with or have a really good relationship with a platonic friend. Why can't they get together and raise a kid? Enjoy the joys of I don't know why they parenthood can't. and just like be Yeah, yourself. I don't know why you can't do that. Yeah. You should be able to do that. Do that. You shouldn't have to be married to raise a kid. True. And also I have one more point to add. And also for me personally speaking, these female friendships have been so liberating for me. एक example देती हूँ. ठीक है, जैसे we come from very protective environments ना. We have moments कि जब हम मम्मी पापा मना कर देते नहीं ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते because they have safety issues कि चलो because we live in societies जहाँ पे चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती और साथ में सेफ भी नहीं होती, दोनों चीज़ें होती है. ठीक है, तो आई थिंक फॉर मी आई ग्रो अप ऐसे बॉलीवुड मूवीज देखते हुए कि रोड ट्रिप पे जा रहे हैं फ्रेंड्स, मतलब कि मुझे भी करना है, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई वांटेड टू डू थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, तो व्हेन आई फिनिश्ड माय स्कूल एंड आई वेंट आउटसाइड, तो फिर धीरे धीरे लाइक आई मेड फ्रेंड्स एंड आई स्टार्टेड डूइंग रोड ट्रिप्स वगैरह. ठीक है, बट जितने लिबरेटिंग मेरे लिए जो मलेशिया के रोड ट्रिप्स थे वो पहले और कोई रोड ट्रिप इतने लिबरेटिंग नहीं रहे मेरे लिए. और पता है क्यों? बिकॉज व्हेन वी वर डूइंग रोड ट्रिप्स इन मलेशिया और अपन पता नहीं कहाँ कहाँ सब जगह भटके अपन, बिकॉज इट वॉज जस्ट अस 4-5 गर्ल्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, और उसके पहले ऑल द रोड ट्रिप्स आई हैड मेल फ्रेंड्स ऑल्सो. आई एम नॉट, मैं ब्लेम गेम नहीं खेल रही हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग दोज मेल फ्रेंड्स, बट लेकिन एक चीज़ों के अपने आप एक डायनेमिक सेट हो जाते हैं कि अच्छा रोड ट्रिप पे है, गाड़ी तो लड़के ही चलाएंगे. ठीक है, सो दे आर सिटिंग एंड दे आर ड्राइविंग एंड देन वे सिटिंग एट द बैक. आई एम नॉट सेइंग आई माइंड सिटिंग एट द बैक, बट लेकिन वो रोल्स इतने डिफाइन हो जाते हैं पहले से ही कि the boys will take care of that, okay? And then मैं बहुत छोटी चीज़ें पॉइंट आउट कर रही हूँ, बट लेकिन ये छोटी चीज़ें मैं बहुत जल्दी पिक करती हूँ, मुझे अनॉय करती रहती हैं चीज़ें. ठीक है, एंड देन यू आर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. वो किसी से जाके बात करनी है या किसी चीज का इशू सॉल्व करना है, तो इट्स ऑलवेज लाइक द मैन हु विल बी. एंड टू बी ऑनेस्ट I haven't gone with friends, घर पे I go with family. And to be honest, मतलब मैं भी I also get lazy and I'll be like अच्छा चलो मेरे ऊपर ये domestic type काम है तो जाओ, you do it. And for me in Malaysia that was also like, I was like okay, you have to take care of I know that I just everything. hang back and don't do all these things at home, but I can take care of all this. Exactly. मतलब यही छोटी गाड़ी चीजें बुक point करना, out. फ्यूल करना, हिसाब करना, the amount of हिसाब्स I have done. You are the only one who did all the हिसाब. हाँ, you are the only one who did this. पता है ये चीजें सुनने में बहुत छोटी लगती है, ये चीजें सुनने में बहुत छोटी लगती है, बट लेकिन we never grew up doing these things. तो मेरे लिए ये चीजें करना, it was always कि हाँ, और मेरे पे इतना दूसरे लोगों का भरोसा होना कि आई कैन टेक केयर ऑफ शिट, दैट इज बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज आई नो आई कैन टेक केयर ऑफ दिस. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की गाड़ी चलाना जैसे, एंड देन यू चेक इन टू अ होटल, so the boys will go and take care of everything. Even the person who wants to come and talk to you, they will go and they do talk to the boy. Outside there are always these men who want to come and talk to you, figure out something. They'll always go to the boys in the group. They will never come I've experienced to you. this too. So I remember हम लोग चेकआउट करने कहीं होटल में बैठे हुए थे एंड समथिंग नीडेड टू बी साइन, तो वो बंदा मुझ पे आया और जैसे ही उसने मेरे भाई को देखा मुझ पे चला गया, सर कैन यू साइन. हालांकि वो बहुत छोटा है और आई वाज ओल्डर, बट दैट डिडंट मैटर. ये बहुत छोटी-छोटी चीजें, these are very small things, but लेकिन ये होता तो है. These are called micro, ऐसी चीजें होती है ना माइक्रो इनइक्विटीज करके कि on their own they are insignificant. और अगर जैसे मैंने अपने भाई को ही बोला तो they were like oh you are thinking too much, ऐसा कुछ नहीं है, but because we experience them on a daily basis they add to it और हमें they do give us the message कि oh let the men take care of it, everything. हाँ और पता है मुझे क्या लगता है, and because we have grown up thinking this कि अपन नहीं कर सकते, तो अपन को एक तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं मिलती है. जैसे तुम ना छोटी चीजें देख लो, that okay why are boys better drivers? Because they have been trained to do that. They have been given the liberty to train themselves. A lot of opportunity to practice. हाँ ठीक है, और मतलब कि छोटी चीजें देख लो यार, जैसे कैसे मतलब
फिलिंग योर टैक्स फॉर्म वगैरह, ये सब चीजें लड़कों को तो आती है ना, बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन्ड टू डू दैट. जैसा और मुझे सीखना पड़ता है. जैसे मैं हर चीज के लिए पापा के पास जाती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूं. मतलब मैं नहीं चाहती कि सब कुछ पापा ही करके दे दें. बट लेकिन कितनी सारी चीजें होती है दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड द अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग फॉर दैट. और उसके साथ साथ एक वो फिर एक कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट, एक डर भी होता है कि ओ एम आई गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग ऑन माई ओन, या विल आई हैव दीज इश्यूज बिकॉज आई हैवंट बीन डूइंग दिस, या समबडी हैज ऑलवेज बीन देयर कि अच्छा मैं कर देता हूँ, या nobody has thought to see कि okay this person is also independent and needs to be taught to do that so they can go out and do this on their own. तो एक ये so now I get what you mean about Malaysia also. Okay, when we did all this and when we did all these road trips, I was like, you know, I always felt that oh, there is something big that these boys are taking care of, that okay, I should let them help me. And lekin it is not, it isn't that I can't take care of it. It's not like something so big that I can't do it, you know. ये जो मेरी एक एंजाइटी ट्रैवल के साथ है और ये वो, आई रिमेंबर जब तुम्हारा और दंती का बर्थडे साथ था, तो उस वक्त मेरा वो भी बहुत चल रहा था कुछ, मुझे उस ट्रिप पे जाने से पहले बहुत सारा असाइनमेंट का काम करके जाना था, क्योंकि उसके आने के बाद डेडलाइन में टाइम नहीं था ज़्यादा. So I was doing all that and I was also thinking of how to manage these two birthday trips, जिसको हम बजट की वजह से, हाँ बजट की वजह से लंबा नहीं कर सकते थे, and वो एक दिन के गैप से थी, तो how would we manage that in one trip. And then it was like दो अलग लोगों के लिए गिफ्ट्स तो ले रहे थे, लेकिन एक बर्थडे के लिए एक इंसान से कोऑर्डिनेट करना था और दूसरे को नहीं बताना था, और एक से. तो ये सारी कोऑर्डिनेशन, बुकिंग होटल, बुकिंग एयरबीएनबीज, मेकिंग श्योर गाड़ी मिल जाए, यू नो, ऑल दीज लॉजिस्टिक्स. आई मीन उस वक्त मैं उसमें थी कि ओ पता नहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, या मुझे कुछ आता है, मतलब विल आई बी एबल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, विल आई मेक अ will I, मैं कोई मिस वो कर दूंगी, अदर पीपल्स ट्रिप्स आर डिपेंडेंट ऑन मी. बट आई रियलाइज कि वो सारा काम का प्रेशर और ये सब, मतलब एवरीथिंग गॉट डन. और मतलब आजकल तो इतनी आसान दुनिया है कि वी कैन डू एवरीथिंग ऑन लैपटॉप्स, और वो हो गया. एंड वी डिड हैव दैट ट्रिप एंड यू बोथ डिड go a little crazy on that trip and we had an amazing time. So and also पता है, I have come to this point now कि मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है जब ये ना ये लड़के बाय डिफॉल्ट वो वाली पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि कई बार वो ले लेते हैं, कई बार उन पर थोपी जाती है. मुझे इतना गुस्सा आता है. अगर कोई लड़की सेम चीज़ करती है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ बहन तू कर ले, गर्ल वाले चीज़ आती है मेरी. बट अगर लड़का इग्नोर करता है ना, मुझे गुस्सा आ जाता है. I have come to this point now because मुझे इतने सालों से सोचते इस बारे में मुझे इतना गुस्सा आई नो दैट इज ऑल्सो अनफेयर ना. उसमें मैं तो नहीं करी, कोई लड़की जाके कर रही है, मेरी हेल्प कर रही है. आई एम नॉट capable to take it is being assumed that I am not being capable to take care of myself, but I don't mind that when a girl is involved. लेकिन ठीक है तू कर ले, मैं तेरी छत्र छाया में रह लूंगी, आई विल बी डिपेंडेंट ऑन यू. आई डोंट माइंड बीइंग डिपेंडेंट ऑन अ गर्ल, बट आई माइंड बीइंग डिपेंडेंट ऑन अ बॉय, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम्स हैं उस चीज़ से. मुझे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बिकॉज सोसाइटी इज टेलिंग यू के ओ, बिकॉज व्हेन इट्स अ गर्ल the society doesn't assume that a girl is taking responsibility because you are not able to. लेकिन लड़कों की जब responsibility है तो आपके अंदर messaging करेंगे ना कि ये इसलिए कर रहा है because you are not able to. You can't so sit back, you incompetent person who needs to be taken care of. That is why it's so angering, क्योंकि ये messaging है. और ऑल्सो ये मैसेजिंग है ना, ये ना मैसेजिंग ने लड़कियों के भी दिमाग खराब करे और लड़कों के भी दिमाग खराब है. जैसे ना ये मूवीज लाइक प्यार का पंचनामा, जहाँ पे ऐसा मैसेज दिया गया है कि लड़कियां तो ना दे आर लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, मनी होल्डर्स, गोल्ड डिगर्स हैं, दे डोंट वांट टू शेयर, दे डोंट वांट टू स्प्लिट द बिल. ये पता चीज़ मैंने इतनी वो ज़्यादा मुझे ना डर लगता है इस चीज़ से. आई डोंट माइंड, मैं पता है किसी फीमेल फ्रेंड से पैसे लेके बैठ जाऊंगी, उसको देना भूल जाऊंगी, मैं एक फीमेल फ्रेंड की उधारी ले लूंगी, आई डोंट माइंड इट एट ऑल. बट एक लड़का होगा ना, मैं वापस आते ही मैं कॉल करके हिसाब करती हूँ, मतलब कि भाई जितने पैसे आए ओ यू टेक इट फ्रॉम मी, बिकॉज वो मुझे प्रेशर लगता है, कि मुझे उसको चुकाना है. बट अगर कोई लड़की होगी ना, जैसे मैं तुम्हारे साथ ऑफ गोल्ड डिगर जो हमें मीडिया के थ्रू हो पा जाता है. आई हैव फ्रेंड्स, मेरी बहन से भी, फ्रेंड से भी, आई टेक मनी फ्रॉम, ठीक है पैसे कम पड़ गए, यू टेक इट फ्रॉम अ फ्रेंड,
इफ इट्स अ फीमेल फ्रेंड, मेरे पास मुझे प्रेशर नहीं फील होता कि मुझे पैसे देना है, मुझे पैसे देना है, मुझे पैसे देना है, क्योंकि लड़का होता है ना, तो अगर मैंने पैसे लिए भी हैं तो एज सुन एज पॉसिबल आई ट्राई टू रिटर्न इट बैक. और अगर लाइक इफ वी गो आउट टू ईट या फिर कुछ भी, मैं उसी टाइम के तू TTM तू तेरा मैं मेरा ऐसे वाला करेंगे. हाँ क्या तू तेरा क्या टीटी, तुम्हारे हर किस्म के मजे के TTM तू तेरा मैं मेरा. तू तेरा नाइस. मम्मी ने सिखाया था. So nice, so cool, so hip. TTM. तो और पता है हाँ, so okay. ये जो रोड ट्रिप वाला जो थिंग था ना, जोया अख्तर इज नाउ कमिंग अप विद अ न्यू मूवी, लाइक जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा था ना, नाउ शी इज कमिंग अप विद अ मूवी व्हिच शोज फीमेल फ्रेंडशिप्स, दे गो आउट ऑन रोड. तो उसमें ये अपनी आलिया दीदी और कटरीना दीदी वगैरह हैं उसमें. Let's see. कैसे लिखा हुआ है, कैसे होती है. I have one more point to make. जैसे जोया अख्तर से मुझे याद आया, when we're talking about movies or these series वगैरह, it is very different when women are writing women characters and when men are writing women characters. You can see the difference. जैसे ना अपना ये जोया अख्तर की दिल धड़कने दो, I went crazy about Sunny, okay, and not because how he looks. I think half the women on this planet went crazy after Sunny. And not because how he looks, सच्ची में to emphasize on it. Not because how he looks. Exactly, I'll tell you, जब वो वाला सीन होता है ना, जब वो उसके हस्बैंड को वो कहता है कि एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम उसे परमिशन दे रहे हो तो यानी पावर तो तुम्हारे पास है, और वो उसकी कजिन मिलके देख के उसको कहती है मैरी मी. आई थिंक दैट इज ऑल ऑफ अस. I know, like भाई तो परमिशन में है, उसको समझते भाई तो होता कौन है परमिशन देने वाला. She is an individual on her. होता है उसका हस्बैंड. I know. Don't you like it? I know. So this is Zoya Akhtar. This is a female director who wrote a male character. Okay. So it is very different when and male. You know, this is a thing, but I don't read a lot of books, but that is a thing. वो लड़कियां जो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती हैं या स्पेशली रोमांस नॉवेल्स वगैरह पढ़ती हैं, तो उसमें they're always like men written by women are what we fall in love with, and then they're not there in real life. So yeah, this male characters written by women. और जो women characters, हाँ बोलो. अपन बात कर रहे हैं 3 तरह की कैटेगरी है. एक तो ऑल द गुड मैन आर गे, आइदर मैरिड और या फिर फिक्शनल कैरेक्टर्स. और हाँ, मेरी तो अब एज की वजह से एनी मैन, मुझे तो ज़्यादातर ट्विटर पे या किसी ऐसे इंटेलेक्चुअली कनेक्ट करके किसी पे क्रश हो जाता है और वो छोटा निकलता है. अच्छा, शादीशुदा निकलता है. शादीशुदा निकलता है या फिर छोटा निकलता है. आई थिंक ये एक 4th कैटेगरी अपन को ये ऐड कर देनी चाहिए. गे, शादीशुदा, फिक्शनल या फिर 18-20 साल के बच्चे निकलते हैं. तो पता है वैसे just for context, me and Ashima are crushing on an 18-year-old British actor right now after watching Heartstopper. और बहुत ही pedophile वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन अब हमें एहसास हो रहा है. अब now we are empathizing with शाहरुख खान and अक्षय कुमार कि उन्हें क्यों छोटी-छोटी बच्चों से. Oh my God, is that how bad I am? But it's fine. But if you watch Heartstopper, you will also fall in love with a 18-year-old kid who's in the series. He's actually 16, but the actor is 18. It is a little better. To be honest, let's be very honest, and we actually fell in love with a 16-year-old character. But it is such a अपने one of a kind का वो पूरा series है यार. It is such an inclusive, अलग तरीके का romantic. It is a romantic series, but फिर भी मुझे पसंद आया because मतलब it is so different and yet it is not so different. It is. हाँ, exactly. It is all those familiar feelings and all those familiar things about a romance, a high school romantic comedy. और जो है but it is still the small things are done so differently.
हाँ मतलब कि all the romantic scenes, all the हो सकता है कि आप already tired हो उनको देख के and you it is not your thing, but if you will watch yeah, this, you don't feel tired. it will be your thing because it is a very और new मैं तो angle. and I think the stamp of approval is actually आशिमा, क्योंकि मैं तो बहुत लाइट चीज़ें देखती हूँ, मैं बहुत के ड्रामास देखती हूँ, तो ये तो मेरा जॉनरा है. But every time Ashima watches something romantic or something high school, oh my god, it is so difficult to bear her. You cannot watch it with her. She keeps shouting at the screen. And she hates it when characters are human and make stupid dumb mistakes because she hates them and she shouts at them and it's so annoying कि भाई oh उसने हक दिया oh this is all she says. She's so annoying. So when I was sharing this show, that is why I didn't share it with you. मैंने कहा पता नहीं तुम्हें because I don't trust my choices. मुझे तो बहुत romantic चीज़ें अच्छी लगती है देखने में. But you have such standards and then you have such reactions. The fact that you like it, I think everybody should be sold on it. Like, that is a good show. Everybody should go watch it. Yeah, I love it because it is inclusive and it is like a good version everybody can relate to. So that is why I like it. मैं एक और चीज़ बोल रही थी. And you will fall in love with a 16-year-old gay boy. True. Yes. Again, छोटा है, gay है, but you will fall in love. That's true. But हाँ, क्या you can see the difference when these male directors are talking about females because they are talking about them through very अजीब सा male gaze जैसा मतलब. है ना. और जैसे when females are talking about male friendships also, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ज़ोया अख्तर, she's talking about these 3 male friends, but like she's just not talking about it ऊपर से. She's talking about their vulnerabilities, their emotions. I think that could happen because she's a female, so she could talk about, not saying that male directors cannot, like not taking away that, but there is a certain them. emotional accessibility that I'm not saying on an individual level, but like on a general level, there is a certain emotional accessibility that female writers and directors have, and they bring especially that when it comes to friendships their and female friendship especially. अब जैसे मैंने एक के ड्रामा देखा था, ठीक है, and it's a horrible drama, please do not watch it, but एक point पे एक लड़की होती है, अच्छा एक लड़की होती है, and there literally at one point I paused and searched the director because I was like 1000% sure कि एक बंदे ने लिखा है, a woman would have never written it, ठीक है, and it was written by a man. So there is this girl who is about to get married, and just like a day or two before marriage, her fiance comes and breaks up with her. Okay, and the reaction of this girl. You know what she decides after she gets dumped in this cruel way is that the next time I fall in love, I will love more deeply and I will love more crazily. What woman has that reaction? What human has that reaction? Hug diya. When this happens, when a man does this to you, what is a woman's reaction? Emotion. Tell me, what is a woman's reaction? What is your view on future relationships with men? Yeah, you don't trust them. You have trust issues. That is not just a female reaction. That is a normal human reaction. Okay? But her reaction is that next time I fall in love, I will go more deep and I will go more obsessive and more crazy. And when she does start liking another guy and she thinks that he doesn't like her, she is so mad. Okay, there is one day that she goes cycling randomly at night to get out all her anger. And the thing she thinks is that I wish all women on this planet would die. And that is the point where I paused the show and I was like, this is a male writer who thinks that, and it was a male writer because he thought that when she does it, when she thinks the guy she's fallen for, the guy she's fallen for likes another girl, she hates all women on the planet. This is what they think. Women think. Okay, oh, I have this guy, but he doesn't like me, so I just hate that girl he likes. And all women are my competition, and I wish all of them would die. And I was like, it is so apparent when male writers are like writing these female characters and portraying this female. फर्क समझ में आ जाता है.
बिकॉज पता नहीं क्या ट्विस्टेड आइडिया है. तुम देखो जो ये रोमांटिक रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है मूवीज वगैरह, उसमें हमेशा फीमेल ही होती है जो नीडी सी होती है और वो इसके प्यार के तड़प रही है, बार बार फोन कर रही है और काफी वल्नरेबल सी है, रो देती है और इमोशनल इंटेलिजेंस जीरो होगी, और लड़के की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होगी, बट लेकिन वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी, वो डिनायल होगा, जो नेग्लेक्ट रिप्रेशन होगी, इमोशंस रिप्रेशन होता है, यू नो. हाँ, जिसको बहुत ही बड़ा चढ़ा के विच इज सपोज टू बी a good kind of emotional intelligence. तो वो रिलेशनशिप का और अगर लड़कियों की फ्रेंड सर्कल होगा तो वो वही सारी जो है बातें करती रहेगी, सैबोटाजिंग टाइप की somebody जो बेचारा लड़का होगा उसके अगेंस्ट जो है पॉइजन करेंगी लड़की को, अपनी फ्रेंड को, या फिर वो जान के सैबोटाज करेंगी बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन देयर फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड और all that shit happens. All that shit. True. हाँ, सच्ची में, that's true. Yeah, so you can see the difference when males are writing and females are writing the character. It is very, very different. Very different. So I'm a little hopeful. देखते ज़ोया अख्तर क्या करेगी. Yeah. Let's see. अच्छा, as far as society is concerned, this is not something I've experienced, but this is something I've heard about. Once you अच्छा, a little of it I've experienced also, ठीक है. जैसे मेरे around a lot of boys will be very their friendships with their friends in the city is just more close, and they feel like, oh, you know, that's because we're more close, but a lot of times that's because उनकी जो mobility होती है वो ज़्यादा है. It is just easier for male friends to meet each other if they're working, तो वो रात को देर से मिल लेंगे. It's easier for them to take trips together, etc. Whereas यहाँ पर when I live here, जो है मेरी mobility इतनी restricted है because this is such a big city. Your friend could be living anywhere, ठीक है. And I don't have a car that I can take anywhere. मतलब I am privileged और दिन के टाइम में I do have a car and I can take it anywhere and I do have a driver, ये सब है मेरे पास. लेकिन generally a lot of people, most people don't have it, and there is no public transportation, and the city is not safe. It's not a small city के अच्छा it's safe for you, वो बड़ा शहर and crazy traffic and crime and everything. So it's not safe. And there are only certain hours of the day that you can go, and if one of you doesn't have as much mobility issues, the other will, you know. So it's not कि एक का issue होता है जो है every girl has to deal with her own set of circumstances, किसी के permission issues, किसी के mobility issues, किसी के कहाँ वो रहती है उसके issues. It is just so much more difficult to physically meet, whereas boys can just go after work, okay, and just hang out wherever they have their cars. वो उनके पास गाड़ी नहीं होगी तो किसी दोस्त के पास गाड़ी होगी तो वो चला लेगा. Like it's not like we can drive around alone at 12 a.m. and feel safe, or you know, and I can go like, oh, I'll pick up my friend, and that friend's parents will be like, हाँ बेटा जाओ निकलो, like 12 बजे किसी दोस्त के साथ, we don't care. Yeah, so it is so much more difficult to actually maintain that friendship in that way. And I think kabhi a lot of times I think people think that is because of some, you know, lack of will, या लड़कियां तो बहुत ड्रामा होती हैं, या you know, oh, they're just not as close as male friends are. But that is just not true. There are so many of these structural problems. और फिर जब लड़कियों की शादी हो जाती है and they go move in with their in-laws, तो एक पूरा ही अलग dynamic add in हो जाता है, because friendships हमारे देसी culture में are just seen as not appreciated, they're not, चाहे लड़कों की हो लड़कियों की हो, it's always like family, और लड़कों के दोस्तों के साथ तो जैसे टाइम ज़ाया होता है. This is what we think कि अच्छा आप सारा वक्त दोस्तों में ही रहोगे, या दोस्तों टाइम ज़ाया है, या something like that. तो when it comes to women, लड़कों में तो वो acceptable हो जाता है, ठीक है, और they're so mobility होती है तो उनकी कोई physical tracking नहीं हो रही थी कि कहाँ जा रहे हो बता के जाना, ये वो, they come they go, ठीक है. लड़कियों में एक तो बता के जाना और ये और वो, आपकी ट्रैकिंग ज़्यादा होती है. एंड देन व्हेन यू गेट मैरिड इट्स लाइक यू हैव इन लॉज एंड यू हैव किड्स एंड यू हैव अ हस्बैंड, एंड देन if you go around with friends a lot, it's like don't you have responsibilities to deal with? Why are you going out with friends? Like that is just something
And frivolous. also, That is something you're wasting time on. You're not a good mother or a wife or a daughter-in-law if you do that. and also dealing with it, अगर चलो आपने थोड़ा रिबेल कर भी लिया, इतना वो मेंटली बहुत ही टैक्सिंग और एग्जॉस्टिंग होता है. जैसे पता है, मैं एग्जांपल देती हूँ, व्हेन आई गो बैक होम ना, तो आई हैव स्कूल फ्रेंड्स. ओके, तो मम्मी पापा को ये इशू है कि उनको कहते हैं कि एक टाइम तक तुम्हें घर आना है वापस, ठीक है, ये कर्फ्यू है तो तुम्हारा कर्फ्यू है. एंड दे आर नॉट ओके विद मी हैविंग नाइट स्टेज विद गाय फ्रेंड्स ऑल्सो, जहाँ पे लड़कियाँ भी हो लड़के भी हो, दे आर नॉट ओके विद इट. ओके, एंड ठीक है, आई डोंट इवन वॉन्ट टू आर्ग्यू विद देम ऑन दैट. ठीक है, दे हैव देयर इशूज, ठीक है, जो भी है, आई कांट आर्ग्यू विद देम ऑन दैट, तो मैं मान लेती हूँ. ठीक है, ठीक है. तो मैंने गो बैक होम, सो वी हैव ऑल दीज प्लान, बिकॉज ठीक है, सब घर पे आए होते हैं एंड योर स्कूल फ्रेंड्स, आपको सबको मिलना होता है. ठीक है, तो इन लोग के नाइट स्टेज वगैरह के, नाइट आउट के वगैरह के प्लान बनते हैं. आई कांट बी पार्ट ऑफ दैट दोज प्लान ऑलवेज. अगर एक दिन के टाइम पे होता है, एक डिसेंट टाइम तक क्या होता है, एक सर्टन टाइम तक होता है, तो जा सकती है. उसके बाद आई कैन नॉट. इट्स नॉट लाइक आई डोंट वांट टू बी, आई वांट टू बी पार्ट, बट लेकिन घर पे लड़ना उस चीज़ से लेके, और फिर मम्मी पापा से कॉन्स्टेंटली वो परमिशन लेना है. आई फील सो स्टूपिड कि 25 साल की हो गई और मुझे जाके मम्मी पापा से किसी की परमिशन लेनी पड़ रही है. आई माइट एज विल नॉट डू इट. जब मुझे पता है इनके कोई मसले हैं तो है ना, आई डोंट वांट टू लाइक फाइट देम विद दैट ऑन दैट. तो इट इज वेरी टैक्सिंग टू navigate that कि नहीं परमिशन दे तो जाना है, and then मुझे नहीं करना. It is. There's a lot of emotional labor that goes in to maintain a friendship. So this might affect the friendship. This might affect the friendship, but then it is what it is. Your reality at home is your reality. That is one of that is an act. I mean, that is something all women go through in maintaining their relationships. Exactly. And one of the issues with things like 4 more shorts and We Ready Wedding is that they just completely ignore that this is an issue. कि वही ये रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं, कि ये तो मसला है ही नहीं. हाँ, मतलब these are the issues. And yet, you know, despite all these issues, women do maintain their friendships. Maybe they don't look like male friendships where you can hang out and chill and take trips and, you know, stuff like that. But they do maintain friendships, and they are really an important part of their lives. Okay, maybe they're not as glamorous as male friendships, but they're emotionally speaking they're very important. लेकिन फिर ना तो मीडिया में आप अगेन फिर आपने जब मीडिया में भी यही दिखाया कि अगर a good female friendship is where you can drop stuff and go on a trip and you can meet at any hour of the day, तो आपने तो reality तो invalidate कर दिया आपने लड़कियों की, कि you did give them the message that if your friendship isn't this, there is a problem in your friendship. When the thing is कि for so many of us it is not possible to have that kind of a friendship. जैसे डोर है ना, डोर तो आयशा शी इज अ विडो, वो घर के बाहर नहीं निकल सकती, तो ओनली टाइम शी मीट्स गुलपना है जब वो रोज मंदिर जाती होती है, तो उसी टाइम मिलते हैं वो दोनों, और उसी टाइम उन लोग का बॉन्ड बनता है वो. हाँ, तो वो एक रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए ना कि दिस इज इट, बट दैट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम हैविंग अ जेन्युइनली गुड रिलेशनशिप which the movie also values and gives due importance to. हाँ, मतलब I want. But वो standard तो वही male standard हो गया ना. At the end of the day, male standard और male realities पे आपने female friendships बना दी, and then you glamorize them under the garb of feminism. But it's not. मतलब कि the temporality of it, the space of it is very different. So I think it should be taken into consideration ना. और पर अब ये चीज़ें तो कितना दिमाग में आती भी नहीं होंगी अपने, वो अपन डिस्कशन कर रहे हैं इस बारे में, तो ये फैक्टर्स अपने दिमाग में आए. When you're watching a movie like that or a series like that, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आती है. मतलब कि आई थिंक, और कितना ऐसा फोमो वाला फैक्टर रहता है ना कि अच्छा चलो देखो ऐसी फ्रेंडशिप्स भी होती है मेरी लाइफ में, तो है ही नहीं कि माय लाइफ इज yes, exactly, so much of my teenage years were like I don't have good friendships because fear of missing you know out. there is this cool thing that I can't do, which is unrealistically cool. It is like you don't have those ऐसा वाला friendships, or I don't know this liberty. And then I think then it's harder, especially if you're living with boys and they kind of do have this ability to just go on trips and understand. You know, be out till 2 a.m. every day, and you know, and then एक ज़्यादा वो होता है
कि I can't do that with anybody, so do I have that relationship? Although all these things are not reflective of your relationship. The fact that you take more trips doesn't necessarily mean that you have a better relationship. Yeah, it is the content of your relationship that determines that. It is how safe you feel, how you are, how much you are yourself in front of that person, that determines that. और ये मुझे अब रियलाइजेशन हो रही है इस बात से, वरना मुझे भी नहीं थी. लाइक अभी मुझे हो रहा है कि दिस इज हाउ आई फील, लाइक माय रिलेशनशिप्स, आई कांट जस्ट गो ऑन अ रोड ट्रिप व्हेनेवर आई वांट. मैं तो सड़ जाऊंगी तुमसे, मैं तो सड़ जाऊंगी कि जब मुझे ऐसा बहुत ही इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं तुम्हें कॉल करूँ तो तुम छोड़ छाड़ के नहीं आए, तुम फ्लाइट टिकट लेके, मैं तो तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ दूंगी. तुम्हें आना ही पड़ेगा. जब मैं किसी लड़के के पीछे रो रही होंगी, आंसू बहा रही होंगी. Oh my God, that reminds me of some time. Flashback आ रहे मुझे. The fuck, man? Okay, that was a nice episode. That was a very nice episode. तुमने, हे भगवान, सवाल थूथू हो गई मेरी. What message are you giving up? मैं अपनी बात कर रही थी. Nobody will believe that. तुम्हारा भी नहीं याद आ रहा. अपन ऐसे एक दूसरे के थूथू क्यों, दोनों के थूथू क्यों करेंगे अपन? No. See why break that barrier? Why is there shame and why is there थूथू? तुम्हारी इज्जत खराब हो गई है, मेरी इज्जत खराब हो गई. Because अपन ने करा ही नहीं ऐसा. This is not exactly this thing. खैर mobility से मुझे याद आया कि मोबिलिटी से मुझे आता है यार, दिस नॉट बीइंग एबल टू मीट या परमिशन ना मिलना. और तुम सोचो ये कितनी कंटेंट रिच चीज है. इसके अंदर you can have so much comedy and you can have so much fun content based on this के I'm sure a lot of girls have a lot of stories as to how they have overcome these barriers, या कैसे उन्होंने parents के साथ negotiate किया, या क्या risk लेके क्या झूठ बोला. I'm sure everybody has these amazing stories. Okay, और मेरी story जो है, this reminds me of our story. Which one? And this, this isn't exactly related to mobility issues because of what women go through. It isn't exactly a women-specific issue, but we had this issue where we were going to be separated because of the lockdown, and we would not have been able to meet, right? But we did so much. So many things to be able to meet, and those are the best stories we have. Like intense shit जिससे हम लोग डिटेन हो सकते थे, अपने देश भेज दिए जाते अगर पकड़े जाते. I don't know if it was that extreme. Was it? Did I take that risk? Imagine security पकड़ ली थी. I do remember going to the boundary and trying to jump over it. And then miserably failing because it wasn't so high because I had zero upper body strength. Stop right there. We cannot go से आगे. Okay, after you are done with your PhD, then we will reveal the stories, which are such good stories. I'm sure अब मेरा women specific scenario नहीं था कि मुझे permission के issues हो या वो हो. But I'm sure if I have these stories, I'm sure a lot of girls have those stories. We could make, there would be. मम्मी पापा ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, बस कंट्री गवर्नमेंट ने लगाई थी. गवर्नमेंट ने लगा दी थी, तो हमने कहा पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शन पे तो मैंने कभी ऐसे काम नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन पे तो कर सकते हैं. करके देखते. Once I'm out of UNMC, once I'm out of Malaysia, in fact, like have a podcast on in this. fact, when I dropped you, apparently the rule had changed. When What? I dropped you, or who did I drop at the airport? Oh, this I was was a the very last amazing one to part go. of our relation, of our friendship. Also, being Desis, we felt that we could not. It was a huge. This was an Ashima thing. We felt that if somebody is leaving for the airport, we can't send them off in a taxi because, oh my god, it was more expensive, but also so impersonal and so
That looks like white people thing. So we did. I know. So we booked cars and dropped people off 1 hour away at the airport. Also, we didn't only book Every cars. time. We also went to the freaking police station to get confirmation approval letters. To get a permit. Yes, to get a permit. Oh, yes, we went to the police station so I would get the permit to go drop her. And I don't know if it was you I dropped. No, with you I had a permission. I don't know who I dropped. Yeah, we went to ceremony of When I dropped, after I dropped, I was going off. मैं जा रही थी departure वाली जगह से, and a police man stopped me, and he told me, "Are you Uber or no Grab? Are you Grab?" And I said, "No, I'm not Grab. I'm just here to drop a friend." And then I showed him documents, and then he said, "But it is a different district." It's you. It was you. And he was like, I said I have this permission, and he said, yes, but now you're in a different district. Apparently, वहाँ पर lockdown की restriction लग गई थी that you cannot cross districts. और एक तो and I was like, I didn't know that. है ना, एक तो मलेशिया में 10 कदम चलो डिस्ट्रिक्ट बदल जाती है. अरे क्या हलवा है क्या मतलब? That is actually the sign of good, well administered countries. So that's you have smaller districts. Anyways, apparently I had crossed the district और उसकी permission मेरे पास नहीं थी, and I was like, oh my god, I didn't even know that the rule had changed. And in these kind of uncertain times, we still went and dropped each other at the airport. No, I was the only one who had to take a taxi because I was the last one left, but everybody else was dropped off in a car despite all these rules and despite having to take these permissions, because not only are we female friends, we're also desi female friends, and cannot fathom the idea that you send off somebody. We don't send off taxi. people in taxis, and also we make sure that the person reaches the airport at least 6 And times when before. the permission was there, एक second, most of the people I dropped alone. But when the rules permitted, we all went in the car at 7 a.m. in the morning. 5. We woke up at 5 or 6. At dawn time, we all went all. Everybody was a zombie sitting like this, but everybody went to drop off at the airport because the whole family, the whole tabbar has to go. Obviously. You don't just send off people to the airport. That's very uncool. And oh my god, the amount you annoyed me when you couldn't go to drop Danti off at the airport, and I had to go alone because of the rules. Danti. Oh my god, you ate everybody's head. You wanted to break the law in a foreign country during lockdown and go drop her at the airport. Danti of all people. That is the kind of stupid shit we've pulled. Yeah, I know, but lockdown, COVID, on student visas, not nationals. Nobody was going to come, bail us out of police stations. ठीक है, अब वीजा चला दो, उस टाइम PhD भी नहीं करनी पड़ती, घर भेज देते. हाँ, थोड़ी अलग पीटी चल रही है मेरी वो. चलो यार, we had a good episode. The end is soon. Yeah, hopefully. We had a good episode. Okay, this was us for today, you guys and girls. And please talk to us, tell us what you feel about female friendships and its representation in media. And please leave comments. And most importantly, like, share, subscribe. Bye. Bye-bye.